مسیح یسوع کی زبان سے نکلے ہوئے دوسرے کلمے کی تشریح اور تفسیر کے لیے میں بلانا چاہوں گی سسٹر سدھیا عادل کو کہ وہ آئیں اور چرچ کے سامنے اپنے دوسرے کلمے کو پیش کریں. آپ کی بہت ساری تالیوں میں. پریز دی لارڈ چرچ. مسیح یسوع کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا دل آج خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند نے آج اس فتح مندی کے دن پر مجھے اس بات کے لیے چنا کہ میں اس پلیٹ فارم پر خداوند کے کلام کی منادی کروں، اور اس کے بعد میں خدا کے خادم پاسٹر ٹیموتھی جوزف کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ چانس دیا کہ آج کلام کی خدمت کو آپ سب کے درمیان میں کروں. سارا عزت اور جلال خداوند کے نام کو ملے. جیسا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، تو اسی سلسلہ میں آگے بڑھتے ہوئے ہم دوسرے کلمے کو سیکھیں گے. میرے ساتھ مل کر نکالیں لوکا کی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت. گاسپل آف لوک چیپٹر 23 ورس 43. اس نے یعنی یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آمین. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات میں ادا ہونے والا یہ دوسرا کلمہ ہے، اور اس کلمے کو ہم ابدی نجات کا کلمہ بھی کہتے ہیں. اگر ہم اس کلمے کے پس منظر پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو 2 ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب کیا گیا، اور خداوند یسوع مسیح کا 2 ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب ہونا کوئی اتفاقیہ بات نہیں تھی، بلکہ اس کا ذکر 700 سال پہلے پیشن گوئیوں میں ہو چکا تھا. اور اس پیشن گوئی کا ذکر ہمیں یسایہ نبی کے صحیفہ اس کا 53واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں نظر آتا ہے کہ وہ یعنی یسوع مسیح خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. اگر ہم رومی حکومت کی تاریخ پر غور کریں تو رومی حکومت ایک سخت قسم کی حکومت تھی، اور مجرموں کے جرم ثابت ہونے پر وہ ان کو کڑی سے کڑی اور سخت سزا دیتے تھے. اور یہ ڈاکو جو خداوند یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں مصلوب تھے، ان کے بارے میں ہمیں کلام مقدس صرف اتنا بتاتا ہے کہ وہ بدکار تھے. اس واقعہ کو اگر ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے بہت سے لوگ کھڑے تھے اور وہ ان کو مذاق کا نشانہ بنا رہے تھے. بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح پر ٹھٹھے اڑا رہے تھے، ان کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے، ان کا مذاق بنا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک ڈاکو بھی شمار ہو گیا، اور وہ بھی خداوند یسوع مسیح پر لعن طعن کرنے لگا. اور وہ خداوند یسوع مسیح سے یہ کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا اور خود کو بھی بچا. لیکن اس کے برعکس دوسرا ڈاکو اس کو جھڑک کر کہتا ہے کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی برا کام نہیں کیا. یعنی وہ ڈاکو خداوند یسوع مسیح کی بے گناہی کا اقرار کرتا ہے. ہاللیلویا. وہ خداوند یسوع مسیح سے صرف اتنی بات کہتا ہے کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ڈاکو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے. اس کے پاس خدا کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس نے اپنی زندگی گناہ میں گزاری ہے، اس نے کوئی نیک اعمال نہیں کیے، اور سب سے بڑھ کر اب اس کے پاس وقت بھی نہیں بچا کہ وہ واپس اپنی زندگی کو درست کرے یا اپنی غلطیاں ٹھیک کرے. یعنی وہ ایک مجرم تھا، ایک گنہگار تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک ایسا انسان تھا جس کو دنیا نے مجرم ٹھہرایا تھا. لیکن جب سارے لوگ اس ڈاکو کو ایک مجرم کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے تو ایک تھا جس نے اس ڈاکو کو مجرم کی نگاہ سے نہیں دیکھا. اور وہ کون تھا؟ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری. ہاللیلویا.
खुदावंद यीशु मसीह ने उस डाकू को मुजरिम की निगाह से नहीं देखा बल्कि रहम की निगाह से देखा। जब दूसरे लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह का मजाक बनाया तो वो डाकू खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आया। और वो ईमान इसलिए लेकर आया क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर वो कलमात सुने थे कि ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और इस दुआ ने उस डाकू के मुर्दा ज़मीर को जगा दिया, क्योंकि उस डाकू ने ये बात सुनी और उसके दिल में ये आया कि जब इन तमाम लोगों को माफ़ी मिल सकती है तो वो भी इस फजल में शामिल हो सकता है। जब दूसरे लोग खुदावंद यीशु मसीह पर शक कर रहे थे तो उस डाकू ने हकीकी तौबा की, और जब उसने हकीकी तौबा की तो खुदा के पाक रूह ने उसकी जिंदगी में काम किया। जब खुदा का पाक रूह उसकी जिंदगी में काम कर रहा था तो खुदा के पाक रूह ने उसकी जिंदगी में खुदा का खौफ पैदा किया और उसके गुनाह उस पर जाहिर किए। और जब उसने अपने गुनाहों का इकरार किया वो यीशु के पास आया, उसने यीशु को कबूल किया और उसकी जिंदगी में एक उम्मीद जागी। तो उसने सादा से अल्फाज में सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को ये बात कही कि ए खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का जो रद्द अमल हमें नजर आता है वो ये नहीं है कि यीशु मसीह ने पहले उससे ये बात कही हो कि जाकर पहले अपने जिंदगी को बदलो, जाकर पहले अपने गुनाहों की सजा को पूरा करो। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें माफी नहीं मिल सकती, बल्कि इसके बरक्स खुदावंद यीशु मसीह ने उस डाकू से इस बात का वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। मेरे जीजो, ये खुदा का फजल है जो हम में से हर एक पर हुआ है और हो सकता है। ये फजल किसी खिदमत का मोहताज नहीं है कि आज अगर मैं या आप या हम में से कोई भी खिदमत में है तो ये फजल सिर्फ उस पर हो सकता है। आज अगर कोई नेक काम करता है, अपनी दुनियावी जिंदगी में रास्तबाजी के काम करता है तो ये फजल सिर्फ उस पर हो सकता है। ये फजल हम में से हर एक पर हो सकता है और ये फजल सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से होता है। और इसके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें वाज़िया तौर पर इफिसियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में बताती है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तरफ से नहीं, बल्कि खुदा की बख्शिश है। आमीन। आज इस कलमे से हमारे लिए रूहानी पैगाम क्या है? मेरे जीजों, हमारे लिए पैगाम ये है कि अगर सलीब पर लटका हुआ एक शख्स जिसको सब लोग बदकार जान रहे थे खुदा की बादशाही को ईमान के वसीला से पा सकता है, तो आज ये मौका हम सब के पास है। आज ये मौका उन तमाम लोगों के पास है जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। याद रखें, जब तक हम इस दुनिया में मौजूद हैं, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम इस दुनिया में इस रोए ज़मीन पर अपनी सांसों में हैं, हर रोज़ हमारे पास ये मौका है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें और उसे अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दें। क्योंकि जहाँ सच्ची तौबा है वहाँ आज़ादी है और जहाँ खुदा का बेटा है वहाँ रिहाई है। इस डाकू की कहानी साबित करती है कि खुदा का रहम हमारे गुनाहों से भरा है, हमारे गुनाहों से ज़्यादा ताकतवर है। खुदा की रहमत हमारे गुनाहों से भरी है, खुदा की रहमत हमारी नाकामी से ज़्यादा भरी है और खुदा का रहम हमारे माजी से ज़्यादा भरा है। हमारी नाकामियाँ, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी बीमारियाँ, खुदा इन सब से भरा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज ही यीशु के पास आएं, सच्चे दिल से अपने गुनाहों का इकरार करें, सच्चाई से खुदावंद को पुकारें, क्योंकि जब आप सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। वही यीशु जिसने सलीब पर जान करने की हालत में
अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके कुदरत के साथ उस डाकू को बचाया, वो आज, कल और अबद तक यकसा है। वो आज हमें भी बचाने की कुदरत रखता है। उस डाकू ने जब खुदावंद यीशु मसीह से ये कहा कि मुझे अपनी बादशाही में याद रखना, तो यीशु मसीह ने उससे एक बात कही कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और आज का मतलब ये है कि उसी दिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि कल, परसों, आने वाले दिन, महीने, सालों में, बल्कि आज, अभी, इसी वक्त। क्योंकि जैसे ही हम खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद हमें उसी वक्त कबूल कर लेता है। हमारी हालत चाहे जैसी भी हो, खुदा हमें उसी हालत में कबूल करता है। खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है। बेशक वो जिस्मानी तौर पर सलीब पर लटक रहे थे, लेकिन अपनी इलाही ज़ात में वो हर जगह पर मौजूद थे। इसलिए उन्होंने उस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस वादे ने उस डाकू की अब्दियत को बदल दिया। उसकी ज़िंदगी को नहीं बल्कि उसकी अब्दियत को बदला। मेरे जीजो, हम इंसान होते हुए बहुत दफ़ा अपने आप को इन चीज़ों में उलझा देते हैं कि दुनियावी चीज़ें हमारे लिए सब कुछ हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द किसी की ज़िंदगी को बेहतरी में देखते हैं, तरक्की में देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये सबसे बेस्ट है। लेकिन सोचें कि इस दुनिया में रहते हुए आप किसी भी मकाम को हासिल कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारी अब्दियत तबाह हो जाए, तो हमारी हमेशा की ज़िंदगी तबाह हो जाए, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस डाकू की सारी ज़िंदगी तबाह है, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी लम्हे में यीशु को कबूल किया और यीशु ने उसे अपने साथ ले जाने का वादा किया, तो उसने अपनी अब्दियत को यीशु मसीह के वसीला से महफूज करवा लिया। आज इस पैगाम को, इस निजात के वादा को अपने साथ लेकर जाएं कि वो एक चोर था, लेकिन यीशु ने उसे अब्दी ज़िंदगी दी। खुदावंद हम सबको इस अब्दी ज़िंदगी में दाखिल होने का फजल दे। आमीन।